All right. Thank you, everyone, and every participants for taking your time out of your busy schedule this Sunday morning for this wonderful session. Uh, I welcome you all on behalf of Women Welfare Foundation, where we strive to empower our students and professionals for a career betterment. So just giving you a brief introduction about what this MWF is all about. So MWF is a social welfare group which is formed by like-minded professionals to work for the career betterment of Momen community in the field of education and employment. So we noticed that there are lots of Momen brothers who are associated and working on various social initiatives at an individual level. So we thought like, let's group them and make this moment professionals bring them into a common platform with the sole intention of helping the moment community and overall society at large. In the last few years, we have conducted many sessions. Some of them were career guidance programs for school students, uh, helping them on choosing the career after SSC, HSC. We have also created lots of workshops and webinars on specific skills like data science, cloud computing, chartered accountancy, food processing, networking, and many more. We also have assisted people with scholarship guidance. We assist people who are fresh out of college with respect to resume drafting, interview preparations, technology guidance, and job placement, etc. I would encourage, like, for folks who have not joined Women Welfare Foundation through our website to register as a student or professional as appropriate. So without taking much time, I would like to start the session. So thanks Rayyan and Alkam for giving your precious time to us and guide us with today's medical career after NEET session. I'm sure that you will be an inspiration and guidance for many more future doctors of our community. So guys, this is a great opportunity not only for students who have appeared for NEET 2021 but also for the aspiring students and also like our 8th 9th 10th 11th 12th graders who wants to appear for NEET in the future and achieve better results. MWF has a goal to promote or get 50 MBBS doctors and 5 MDs from our community by the end of 2021. So that's the aim and goal that we are working for. And hopefully this webinar is a step towards that goal. In fact, it's very difficult to achieve this goal unless and until your support. So we definitely need people, we need your support to identify bright students from your locality, society, relatives, so that they can connect with us and we can help them with a better guidance. Uh, as I said, like, this is an excellent opportunity for students to prepare for NEET and crack the exams very well. Also, we have noticed that people have this perception that medical education is very tough and expensive, and hence we see lots of bright students also drop out. So I believe, inshallah, this session will be clearing all those perceived notion and help students to uh, choose this medical career as appropriate. As we are aware that pandemic has created the need of medical professional, not in a community, not in a society, but I would say like every building should have a doctor with this kind of pandemic situation that we are in. So I would like to invite Rayyan Rafiq Sunasra. He is from Pirozpara. Uh, he had aced the NEET 2020 exam and with a score of 624 out of 720, and is currently in his first year at Cooper Medical College. Along with that, I have Alkam Jubair Patel. He is from Basu. He had a NEET score of 616 out of 720 in 2020. He is also in his first year at GMC Medical College, Aurangabad. So over to you, Rayyan and Alkam.
Become screen share. Oh, you don't have just a sec, please. Alkam, are you sharing the screen? Yeah, one. Is it visible, the screen? Yes, Alkam, we are able to see your first screen, which is NEET and option other than MBBS. Oh, okay. So today's topic is of NEET and MBBS and what is NEET And exam. sorry to So interrupt you, NEET is Alkam. I mean, like, we can make this session a combination of English, Urdu, Gujarati, whichever works or suits for the audience. So feel free to, I mean, like, maneuver the language as appropriate. Alkam, you there? Did we lose you? Alkam, we are not able to hear you if you are speaking. Okay, no Okay, problem. I think we got you back. So the today's topic is NEET and Ayush courses. Looks like we have bad internet connectivity. Is it like my internet or is it Alkam's internet? Rayyan, are you able to hear me? No, it is Alkam's internet. Okay. Sorry, folks, for the technical glitch. We will be there shortly. And just to one thing I forgot about Rayyan. So, mashallah, Rayyan has completed his HIFZ at the time of getting that NEET score of 644. So just wanted to highlight this, that gone are the days where you say like, okay, you can either concentrate on HIFZ and Alim and or concentrate on what you call the education profession. There are lots of examples like Rayyan, where you can achieve best of both worlds, right? You can do your HIFZ along with your career profession, whatever you would like to choose. So just wanted to highlight that. Over to you, Alkam. Thank you. So NEET is an all India level exam. So what is it necessary to give? मतलब देना जरूरी है क्या? So yeah, it is necessary because the admissions to MBBS and Ayush courses are now solely by NEET, whether you take state quota or all India quota. So it's quite necessary to give NEET. And the courses that require NEET are MBBS, BDS, BHM, and also yeah. So now if NEET score is not up to the mark, so one thing is necessary for NEET preparation is that consistency in the preparation. We see a lot of people saying that you have to study for 12 hours per day, 14 hours per day, otherwise you can't clear NEET. It's not that. It just you exam. If you ask anybody who had clear NEET, nobody studied 12 hours all days till the exam. It's just that you have to be consistent and perform well.
Over to you, Ryan. One second. Ryan, you there? We are not able to hear you. You might need to become off mute. Okay, so I'll be continuing this slide. There is some Okay. problem with Raya. Sure. So now comes the point, like many people say that, is it okay to drop for NEET or is it necessary to take a drop for NEET? So this thing is quite depend on a person, because some people thoroughly prepare for NEET from like 8th standard, 9th standard, 10th standard, or 11th standard exam, and they just go for medical college. But some people don't prepare that thoroughly in 11th, 12th, so they are not able to crack NEET in the first attempt. So they normally ask themselves and people around them that should I take a drop or not. So taking a drop is not bad as far as your age is concerned, because when you see in a medical college, 90 to 95% of people are droppers. So it's not that taking drop is something bad or stigmatic, but when you take a drop, it's not only the preparation, you have to be mentally prepared too. So normally it happens that people take drop by thinking that they will be able to clear, to prepare thoroughly and in one standard, that is 11th and 12th. So it's not that simple. You just have to work daily and you should prepare consistently. Another thing regarding taking a drop is that what to do while taking a drop. Some people ask, should we take offline coaching? Should we take online coaching? Now, when it comes to the offline coaching, you have to pay some sums of money. It might be in thousands of rupees. So some people ask, what is there a cheaper alternative? Hey, Alkam, we are losing this important information because of weak internet, probably at your end. So yeah, Ryan can continue. बहुत सारे alternative like Alkam, I'll continue. If you ask me, I know two of them. से करके कि हाँ So basically, Alkam talked about taking a drop and stuff like that. So I'll continue. The offline coachings are usually expensive. Like they go in lakhs for the 2-year course, and even for the 1-year repeater course, they charge in lakhs. So अभी इसके मतलब इसका alternative क्या है?
इसका अल्टरनेटिव ये तो नहीं हो सकता कि नीट के लिए प्रिपेयर ही मत करो। तो दो प्लेटफॉर्म है जो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे इन द सेंस कि बेसिकली ये ऑफलाइन कोचिंग जैसे ही है, लाइक दे आर इवन बेटर देन ऑफलाइन कोचिंग। मैंने बहुत लोग से बात की है इसके बारे में। और ये दो प्लेटफॉर्म जो है वो है फिजिक्स वाला और नीट प्रेप करके। जो लोग भी देख रहे हो नोट डाउन कर ले कि ये दो प्लेटफॉर्म है। फिजिक्स वाला की कुछ फीस टोटल कुछ 5 या 6 हजार है दोनों साल की, दोनों 11th 12th मिला के। और उसमें सब आ जाता है, क्वेश्चन पेपर्स आ गए, मॉड्यूल्स आ गया, बेसिकली जितना भी कंटेंट इनफ होता है, जितना भी कंटेंट इज रिक्वायर्ड टू क्रैक नीट, वो सब प्रोवाइड करते हैं वो लोग। तो ये फिजिक्स वाला होगा। और एक नीट प्रेप करके भी है। नीट प्रेप की 2 साल की कुछ फीस है 35,000 ऐसा कुछ है, 35-40,000। बट उसमें बहुत स्ट्रक्चर्ड रहता है, दोनों कोर्सेज बहुत ही स्ट्रक्चर्ड है। ऐसा नहीं कि तुमने फीस भर दी और तुम अपने पे हो, वो लोग कोऑर्डिनेट करते हैं। और फिर ठीक है, एंड ऑफ द डे यू हैव टू सिट एंड स्टडी। बट अगेन ऐसा स्ट्रक्चर्ड कोर्स है, ऐसा नहीं कि बहुत एकदम ऐसा बस दे दिया है कि तुम्हें पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना है नहीं पढ़ो। और फिर ये भी है कि नीट प्रेप में अगर 30 to 35,000 प्राइस है, और अगर तुम्हें गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है नीट देने के बाद, तो वो पूरी फीस वापस रिफंड हो जाती है। तो ये एक बहुत अच्छा है, ये अच्छा बहुत अच्छी सोशल सर्विस कर रहे हैं लोग कि जो लोग भी ऐसा फाइनेंशियली पुअर है उनके लिए ये एक हो गया। और ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। मैं खुद भी मतलब थोड़ा इससे हेल्प लिया था ये प्लेटफॉर्म से, जब जब लॉकडाउन स्टार्ट हो गया था, जब ऑफलाइन कोचिंग बंद थी। तो ये दो है। और फिर टॉकिंग अबाउट कि टू टेक अ ड्रॉप और नॉट, तो बेसिकली फर्स्ट अटेम्प्ट दिया, ठीक है। और फिर कभी भी अगर ऐसा लग रहा है कि यू वोंट बी एबल टू स्टडी द होल पोर्शन अगेन, तो ये सोच के मत ड्रॉप लेना कभी कि ठीक है दूसरी अटेम्प्ट में अच्छा ही आएगा। ऐसा नहीं होता है। लोगों के मार्क्स बढ़ते हैं, बट अगर अच्छे से नहीं पढ़ते तो अभी मेरे बहुत दोस्त लोग ने ड्रॉप किया था, तो सबके कुछ 40-50 मार्क ही बढ़े। और 40-50 मार्क्स ऐसे ऐसे पॉइंट पे बढ़े कि जैसे पहले उनका नीट 2020 में स्कोर था कुछ 400 के अराउंड, और अभी 450 के अराउंड आ रहा है। 450 के अराउंड भी एमबीबीएस सीट तो नहीं मिलेगी। तो इफ यू आर determined that you'll study, you'll give your best in this 1 year, then proceed to take a drop. Otherwise choose some other courses. Like courses that require NEET are basically MBBS, BDS, BHMS, BUMS, and BAMS. Basically MBBS, BDS, and all Ayush courses. And there are also medical courses that don't require NEET, which include nursing, physiotherapy, pharmacy, biomedical engineering, biotechnology, और बहुत सारे भी। एक डाइटिशियन का भी कोर्स होता है जो which is somewhat related to medicine, तो वो भी एक ऑप्शन हो गया। और हाँ, अभी हमारे तरफ से बस इतना ही है। इसको कुछ भी सवाल पूछना तो अभी पूछ सकते हैं। ऑडियंस में से किसी को कोई सवाल पूछना है स्पेसिफिकली नीट के रिलेटेड या फिर मेडिकल करियर के रिलेटेड? आई थिंक दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी टू speak to people who are already in the industry, or at least like ace the NEET score. एंड अगर आपको टाइप भी करना है तो आप अपने सवाल को टाइप कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह रैयान और अलकम उसके जवाब भी दे देंगे। हेलो। अच्छा रैयान और अलकम,
जनरली आपने कहा कि 440 में भी मेडिकल में एडमिशन मिलना मुश्किल है, मेडिकल इन द सेंस एमबीबीएस में, राइट? तो अ, कितने, अगर मुंबई में अगर कोई अपीयर करता है एटलीस्ट महाराष्ट्र में, तो क्या चांसेस है, उसको कितना स्कोर करना चाहिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए टेंटेटिवली? वैसे तो हर साल डिफर होता है, बट अराउंड 530, 545, 550 के अराउंड जनरल कैटेगरी से मिल जाता है। और एक चीज ये है कि लाइक इफ योर फैमिली इनकम इज बिलो 8 lakhs, तो एक ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट भी बनता है, तो उसका कट ऑफ और कम हो जाता है। और फिर ओबीसी भी रहता है, तो उसका भी कट ऑफ कम होता है। तो ये जो भी है, मतलब अपना मोहन समाज तो ओबीसी में ही आता है, तो फिर जो भी है वो बनवा लेना। और ओबीसी में भी दो टाइप का रहता है, एक नॉन क्रीमी लेयर रहता है और एक क्रीमी लेयर रहता है। क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट बनता है जो ये बताता है कि हमारी फैमिली इनकम 8 लाख से बिलो। तो ईडब्ल्यूएस इज कि बस तुम्हारी फैमिली इनकम वो है, इज बिलो 8 lakhs। और ये जो ओबीसी, ओबीसी के अंदर भी एक नॉन क्रीमी लेयर है, जो ओबीसी के अंदर जाता है वो, उसका भी यही है कि 8 लाख से बिलो। तो इसमें भी कट ऑफ मतलब काफी कम हो जाता है। अच्छा, आपने बताया कि 550 560 के करीब जनरल में चांसेस है महाराष्ट्र की कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज में मिलना टेंटेटिवली। आई मीन लाइक एज यू सेड के कट ऑफ चेंज होते रहता है, वेरी होते रहता है। बट आपने ये भी कहा कि ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए कट ऑफ कम है, तो क्या वो 10-20 कम है या 50-100 कम है? अराउंड 30 to 35 मार्क्स, ओ 25 to अराउंड, 30। अच्छा, नॉट दैट बिग डिफरेंस बट एटलीस्ट थोड़ा कम है। नाउ विल ओके। टेक द क्वेश्चन फ्रॉम द chat box. हाउ टू स्कोर मोर इन फिजिक्स। तो बेसिकली फिजिक्स में ट्राई करो, नीट नीट के क्वेश्चन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। आसिया नेदरिया ने पूछा है कि, नहीं नहीं नहीं, आयबा गुजारिया ने पूछा है हाउ टू स्कोर मोर इन फिजिक्स। तो बेसिकली फिजिक्स के लिए ट्राई करो कि क्वेश्चंस काफी सॉल्व करो। लाइक मेरा भी ऐसा ही था स्टार्टिंग में फिजिक्स में। मेरे को स्टार्टिंग में फिजिक्स में 180 में से कुछ 30-35 आते थे। बट ये ट्राई करना फिजिक्स में कि सबसे पहले तो नीट में क्वेश्चन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आते हैं, मतलब बेसिकली फॉर्मूला बेस्ड बहुत रहते हैं। इसीलिए ये ट्राई करना कि सबसे पहले कि सब फॉर्मूलाज अच्छे से आते हैं तुम्हें। ये एक हो गया। फिर सेकंड ये है कि जितना हो सके क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस करो। और ज्यादा मतलब इतनी ज्यादा बुक्स रेफर करने की जरूरत नहीं है। क्या बोलते हैं फिजिक्स के लिए, जो भी तुम एक ही मटेरियल है, वही मटेरियल को अगर 2 बार भी करोगे वापस से तो हो जाएगा। और फिजिक्स में हाँ ये ट्राई करो कि क्वेश्चन अच्छे ज्यादा सॉल्व करो। और बस यही है। फिर कैन आई गेट एडमिशन आफ्टर गेटिंग 500 मार्क्स इन नीट, ओएस ने पूछा है। तो ये तो अभी कट ऑफ रैंक आएगा तभी पता चलेगा। बट ये साल के हिसाब से क्या पता, इसका मेरे को भी आइडिया नहीं है। ये साल के हिसाब से तो पिछले साल तो जनरल कैटेगरी का महाराष्ट्र में कुछ 560 या ऐसे कुछ क्लोज हो गया। फिर which book should I prefer for NEET examination? हाँ तो एनसीईआरटी तो है ही। ये किसने पूछा है? ये आसिया ने और मेमन ने पूछा है कि बुक्स कौन सी नीट के लिए चाहिए। तो ये हो गया अपनी रैया, एनसीईआरटी तो हो ही गई बायो। हाँ एनसीईआरटी तो जैसे मतलब वो तो बेसिक है, बट उसके अलावा कोई रेफरेंस बुक बच्चों को यूज करना चाहिए, और अगर करना चाहिए तो कौन सी अच्छी होती है? तो ये एनसीईआरटी तो हो ही गई जो है। और जो जो तुम्हारी जो मेन क्वेश्चन सॉल्विंग बुक रहेगी या जो भी रहेगी, वो एक तो ये हो गया कि तुम जो भी कोचिंग लो, जो भी क्लासेस ले रहे हो, उसका भी तुम अगर कर लोगे तो मोर देन इनफ होता है वो। मैंने सिर्फ आकाश किया था और एनसीईआरटी किया था, उसके अलावा कुछ नहीं किया था मैंने। और अगर बायो के लिए मैंने नहीं किया था, बट बहुत लोग ने बोला है अरिहंत की एक नीट की बुक आती है बायो के लिए, तो उसमें एमसीक्यूज अच्छे हैं, वो बायो के लिए हो गई। और तो रयान रयान एक मिनट,
मेरे बायो के लिए जो बुक है ना, वो थोड़ा ज्यादा डीप हो जाता है, इसलिए डॉक्टर अली की जो अलकम वो अलकम एनसीईआरटी को एकदम थरली प्रिपेयर करा देती है, डॉक्टर अली की बुक। अनफॉर्चुनेटली आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है, तो इफ यू कैन जस्ट टाइप दैट वुड बी ग्रेट। वी डोंट आई वांट गॉट टू इट मिस दोस प्रेशियस। अच्छा ठीक है। आई मिला रहता हूँ। हाँ तो एक अलकम ने जो बुक बोली डॉक्टर अली की बुक है, वो एनसीईआरटी अच्छे से कवर तो करती है। तो वो भी बहुत अच्छी बुक है। वो एनसीईआरटी का बेसिकली अभी फिलहाल पैटर्न यही है कि एनसीईआरटी से ही आते हैं यस, क्वेश्चन हाँ। बायोलॉजी में। तो वो डॉक्टर अली की जो बुक है वो नोट डाउन कर लो, वो बहुत अच्छी बुक है। अच्छा, ऑल इंडिया लेवल पे 500 मार्क्स में तो मुश्किल है, क्योंकि और ए आई क्यू का जो कट ऑफ रहता है वो यूजुअली स्टेट से ज्यादा रहता है। गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ मैं, प्राइवेट में तो मिल जाए। इज नीट रिक्वायर्ड फॉर बीएससी नर्सिंग? नहीं नहीं, नीट इज नॉट रिक्वायर्ड। Someone has asked the difference between B farm and D farm. हाँ, आई गेट बैक टू द अभी एक मिनट। अच्छा कॉलेजेस फॉर बी। हाँ हाँ, ओके, गुड। सीधा मैं आज हाँ नहीं, एक सवाल ये था, तो जनरली मैंने ये नोटिस किया है कि हमारे बच्चे 11th में जब वो आते हैं तब जाके वो नीट की प्रिपरेशन करते हैं। सो डू यू थिंक दैट इज द राइट टाइम टू start preparing for NEET? I've read and I've seen people starting at as early age as 7th standard, 8th standard. Do you think that is the right way? या बहुत ही जल्दी कर रहे हैं या बहुत ही लेट कर रहे हैं? If you can throw some light on that, that would be helpful for the students. आई गेस 11th इज द राइट टाइम। लाइक पहले स्टार्ट करके भी मतलब नहीं है, क्योंकि 2 years आर मोर देन इनफ टू कवर द होल नीट सिलेबस एंड रिवाइज इट इंक्लूडिंग एवरीथिंग। सो 2 years आर मोर देन इनफ। सो अकॉर्डिंग टू मी 11th इज द राइट। Acha, for people who cannot get the score of 550, that magic score of 550, जहाँ पे महाराष्ट्र में free seat का chances है, तो as you said, like other options are BDS वगैरह वगैरह, right? So I know like we have a Unani college, Kalsekar, Warsaw, I believe. उसका कुछ कट ऑफ पता है या फिर किन किन लोगों को वो कोर्सेज में अप्लाई करना चाहिए? जनरली पीपल हैव दिस परसेप्शन कि BUMS के लिए उर्दू जरूरी है, क्या उसके बारे में बता सकते हो? हाँ तो ये जो BUMS और BAMS का जो है कि उर्दू और संस्कृत आनी चाहिए, तो मेरे एक दो दोस्त हैं जो ये कोर्सेज ना, वो लोग ने बोला कि वो लोग बेसिक से स्टार्ट करते हैं, मतलब उर्दू और संस्कृत दोनों। तो उसमें कुछ है नहीं, उससे इतना फर्क नहीं पड़ता। अच्छा अलकम, अगर सॉरी रयान और अलकम, अगर सपोज किसी को if someone doesn't fall in this EWS category या OBC category, right? Uh, are there any scholarships available to cover the fees? सो बेसिकली कोई मतलब इसके अलावा तो और कोई है नहीं ऐसा। बट गवर्नमेंट कॉलेजेस में यूजुअली मतलब फीस कम ही रहती है। तो इसके लिए कुछ वैसे भी मतलब गवर्नमेंट ऑलरेडी सब्सिडी दे रही है, तो इसके अलावा और कोई स्कॉलरशिप तो अवेलेबल नहीं फॉर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। ओके अच्छा, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जो फ्री सीट बोलते हैं उसकी वो क्या रियल में फ्री होती है या वी हैव टू पे समथिंग, एंड व्हाट इज दैट अमाउंट? हाँ, सो बेसिकली इधर मुंबई कॉलेजेस में, मतलब मुंबई में है तो फीस ज्यादा होगी। तो मेरी फीस है कूपर की कुछ 1 लाख पर ईयर। लेकिन मेरे को अलकम की कॉलेज का फीस नहीं पता है, वो बताएगा वो अभी। सो लेकिन इफ जो यू से मतलब इफ यू से फ्री सीट इट्स 1 लाख, राइट? तो उसको फ्री सीट बोली जाती है, राइट? यस यस।
वो ओके 1 लाख तो फीस होती है कॉलेज की जो है। अच्छा, तो इसको अगर फ्री सीट बोलते हैं तो जो पेड सीट है या फिर जो प्राइवेट कॉलेजेस में जो होता है उसकी टेंटेटिवली फीस क्या होती है? 2 लाख, 3 लाख? तो प्राइवेट कॉलेजेस की जो सबसे इधर जो सबसे चीपेस्ट प्राइवेट कॉलेज है वो है तेरणा मेडिकल कॉलेज, नवी मुंबई में। तो उसकी फीस कुछ है 11 लाख, तो माशाल्लाह। पर ईयर। So students को मतलब if they want to save 10 lakhs per year, they have to strive and what you call target for at least 560 marks in NEET, right? यस यस राइट। तो किसने अभी मेरे को डी फार्मा और बी फार्मा में डिफरेंस पूछा था। तो डी फार्मा इज बेसिकली डिप्लोमा, और बी फार्मा जो है वो बैचलर्स है। तो डिप्लोमा है तो उसका ड्यूरेशन भी कम है, सिर्फ ड्यूरेशन 2 साल का होता है डी फार्मा का, और बी फार्मा का 4 साल का ड्यूरेशन है। बस इतना ही आइडिया है मेरे को। अच्छा, बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है कि आजकल फॉरेन कंट्रीज में एमबीबीएस करते हैं। तो कैन यू थ्रो लाइट के क्या वो चीपर है, क्या वो एक्रीडेटेड है, आई मीन लाइक वैलिड है, आर दे सपोज टू कैरी आउट और प्रैक्टिस मेडिसिन व्हेन दे आर बैक इन इंडिया? तो उसके बारे में अगर आप कुछ बताओ तो। हाँ, तो फॉरेन में एमबीबीएस इज चीपर देन प्राइवेट कॉलेजेस इन इंडिया। इसके लिए जो लोग को मार्क्स नहीं आते और उनका थोड़ा बजट भी कम होता है, तो दे यूजुअली डू एमबीबीएस फ्रॉम अब्रॉड कंट्रीज लाइक यूक्रेन, रशिया, किर्गिस्तान। तो ये हो गया। लेकिन मतलब जो फिर एमबीबीएस हो जाता है उधर, and in order to practice here in India, they have to give an exam, which is foreign medical graduate exam, and the passing percentage of that is considerably less. तो बस वो एग्जाम पास कर दे तो इधर आके कर सकते हैं। हाँ, बट इन टर्म्स ऑफ क्या बोलते हैं, इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस, इट इज बेटर टू स्टडी इन अ यूनिवर्सिटी व्हिच इज अब्रॉड rather than studying here in a private college. Okay, or do you recommend any specific universities or countries that students should prefer? Sorry, bhai, no idea about that. Acha. Sufyan bhai, sorry, just to clarify, there is one of the Muman student, he's doing MBBS in China. Mashallah. I think he almost completed or is going to complete it. So he's from Khali Gam, you know, my own village from Khali Charasta, and he I think he's doing MBBS in China. Mashallah. So, I mean, like, there are possibilities to do MBBS in foreign countries. Just that students should know, they should check the eligibility and the accreditation of the foreign universities, those who are offering MBBS through Medical Council of India, MCI. That is very important. Because some of the students, they just apply for the admission in foreign countries, but not all the universities are accredited. Some are bogus and fake universities. They do offer MBBS degree, engineering and other degrees, but they are not well recognized. So students should check the accreditation through Government of India. And also because sometimes Government of India always update the university, those fake and bogus universities, they always update it, blacklisted universities. So students should always see this list, and also what we call as they should also see the ranking of the universities in the website, QS high ranking, QS ranking, Times higher education ranking. So Government of India usually they recognize first 500 universities in the world. They recognize much to them. Also, they recognize beyond 500, but the top 500 universities in the world, the Government of India, they have some exemptions. So students should check their all these things before applying for the admission. Jazakallah Arshad bhai for this details. Sorry for interruption. I'd like to make one point. Yeah, please go ahead. So Mr. Arshad said that if you can share your name, your village, that would be helpful for the audience.
I'm Alkam speaking. अच्छा अच्छा अलकम भाई हाँ बोलो 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 So the gentleman said that the university must be recognized by MCI. So now the MCI has been dissolved and the NMC has taken charge. So please don't confuse MCI with NMC. They both are one and the same thing. And secondly, the top 500 universities are recognized by NMC. This is not a real thing. The problem is the university which applies to be recognized by NMC are being recognized by seeing their infrastructure. So it's not necessary that the college which are ranking in top 500 are recognized by NMC. There are some colleges which are at top or at bottom, but they are recognized by NMC. So the ranking doesn't matter. You should just check that the foreign university is being accredited by NMC and if possible WHO also. Alkam, what I mean from top 500 is not about recognition. I am talking about some exemptions given by government of India. Okay. So when you are coming for the job and some prospect, government of India has something, NMC and all other technical, I'm not telling they are recognized first 500 only and they don't recognize beyond that. I told clearly that beyond 500 also is recognized. But the thing here I want to clarify is when it comes for the job and other prospectors, government of India considers first of 500 universities. Okay. Okay. So that is my clarification here. And second thing is that I wanted to share that there are private colleges, but in private colleges, there are two categories. One is deemed college and other are semi-government college. We normally say that the private colleges which are affiliated to Maharashtra University of Health Science, which is a government university, they are normally called as semi-government college because their fees is quite less compared to deemed colleges. So if you want some example, there are KJ Somaya Medical College and Terna Medical College in Mumbai, which are their fees is like 7 to 10 lakh per year. But when you see deemed university college like DY Patil or MGM medical colleges, they charge you 20 to 25 lakh per year. So if you are from a category like SC, ST, OBC, EWS, so you can get concession in tuition fees of these private colleges. So if you are in category like SC, ST or OBC, so you don't have to pay the tuition fees. You just have to pay the extra fees like library fees, hostel fees, etc. So that comes out to be 1 lakh in private colleges and 10 to 15,000 in government colleges. But if you are in EWS, you might get 50% concession in tuition fees, not in overall fees, but in tuition fees. And for general category, you have to pay the whole sum. And secondly, Rayan made a point that he didn't knew the fees about my college. If you see any government college, so सबकी fees same ही रहती है because 94,400 is the tuition fees, which is charged same for all the government colleges in Maharashtra. उसके बाद कुछ extra fees रहती है that are like 10 to 15,000. So it's one and the same thing. Like तुम government college में हो तो तुम्हें fees हर जगह same ही पड़ने वाली है. So don't worry of the fees. Just see that what is the rank of the college. Over to you, Sufyan bhai. हाँ थैंक्स अलकम भाई अच्छा और एक चीज़ जो जनरली बच्चों के दिमाग में एक कंफ्यूजन रहता है कि ठीक है एमबीबीएस नहीं हुआ तो बीएएमएस किया या बीएचएमएस किया या यूनानी किया तो वो लोग क्या जनरल एलोपैथी मेडिसिन दे सकते हैं कैन दे प्रैक्टिस एज अ एलोपैथी डॉक्टर और वेदर दे हैव टू गिव द चूरन्स एंड द स्मॉल होम्योपैथिक गोलीज और द यूनानी व्हाटएवर दे हैव इफ यू अगर आप रूरल इंडिया देखो जैसे हमारे गांव में या मुंबई के भी स्लम इलाके में देखो सो यू सी दैट एवरी डॉक्टर प्रिस्क्राइब्स एलोपैथिक मेडिसिन हमें फर्क भी नहीं पता चलता है कि ये एमबीबीएस डॉक्टर है या आयुर्वेदिक है या होम्योपैथी सो इलीगली सेइंग सो यस यू कैन गिव बट इफ लीगली सेइंग सो नो यू कांट गिव. And secondly, you will be not able to get a job in any private or government hospitals if you are from Ayush courses. You might get a job in the medical college of that where you have studied and the affiliated hospital. But in general, in metro cities, it's very hard to get jobs for Ayush courses people. They normally tend to move towards rural area because that's where their target audience is. Over to you, Sufyan. Okay. Hello. Yeah.
हेलो या प्लीज गो अहेड। सर, रिजवान बोल रहा हूँ शेरपुरा से। हाँ रिजवान भाई बोलो ना। सर, मेरी डॉटर जो है उसको डी फार्मेसी करना है, तो उसके लिए बॉम्बे में कोई बेस्ट कॉलेज है या फिर कोई इंस्टीट्यूट से करा सकते हैं, तो वो बेस्ट रहेगा, कौन सा अच्छा रहेगा सर? ओके, इसका जवाब मैं देता हूँ। जी सर। तो डी फार्म एक्चुअली महाराष्ट्र में है ही नहीं, इट्स इन कर्नाटका एंड एनी अदर स्टेट। महाराष्ट्र में सिर्फ जी बी सर। फार्म है। सो बी फार्म के लिए आपको मुंबई में एक ओशिवरा में कॉलेज है और एक कोई दूसरे एरिया में कॉलेज है, तो बी फार्म में आपको मिल जाएगा। डी फार्म के नहीं मिलेगा क्योंकि बिकॉज देयर इज नो डिग्री कॉल्ड एज डी फार्म इन महाराष्ट्र। उन लोग ने जी सब सर। हटा दी डिप्लोमा इन एनी मेडिकल कोर्सेज, तो आपको बी फार्म करना पड़ेगा। और बी फार्म के लिए आपको 12th के बाद फार्मेसी की सीईटी की एग्जाम आती है, वो देनी पड़ेगी। नीट जितनी टफ नहीं है, लेकिन अगर अच्छे से प्रिपेयर करेंगे तो आराम से हो जाएगा। पर सर वो मैंने उसको कहा था, बट बी फार्मेसी करना ही नहीं है वो। शी सेज के मुझे डायरेक्टली डी फार्मेसी ही करना है, डिप्लोमा इन फार्मेसी। तो मैंने एसएनडीटी कॉलेज में तो ट्राई किया था, यहाँ पे बॉम्बे सांता क्रूज में। और मैंने कांदीवली में एक इंस्टीट्यूट है, ठाकुर इंस्टीट्यूट करके, तो वहाँ पे भी इंक्वायरी किया हुआ है। तो आई जस्ट वांट टू नो दैट कि वो कंसल्टेंसी जो है, उन्होंने मेरे ख्याल से राजस्थान से ही बताया उन्होंने करने के लिए। वो वाटर पे मतलब क्लास वगैरह यहाँ चालू रहेगी, बट एग्जाम देने के लिए उनको बैंगलोर या तो राजस्थान का जाना पड़ेगा 7 डेज या 8 डेज के लिए। तो आई जस्ट वांट टू नो कि मतलब वो ठाकुर कॉलेज जो इंस्टीट्यूट है, ठाकुर इंस्टीट्यूट, वो बेस्ट रहेगा या कोई? Actually, I don't have any idea about the institute's ranking in this field. जी सर। So, लेकिन आप अच्छे से एकदम वेरीफाई कर लेना, कॉलेज के मैनेजमेंट से बात कर लेना, बिकॉज ऐसे मामलों में बहुत बोगस कंसल्टेंसी रहते हैं। जी सर। तो खाली एक बार आप क्रॉस चेक कर। अस्सलाम वालेकुम भाई, मैं ठीक है याहिया सर। बोल रहा हूँ। मैं वालेकुम याहिया सलाम, बोल याहिया रहा हूँ। भाई। हाँ जी, ये जो आपने जो बताया ना कि ये ठाकुर कॉलेज यहाँ पे स्टडी कराएगा और कर्नाटका में एग्जाम देने जाने का, दैट्स वेरी जी। वेरी कॉमन इन डी फार्मा। ओके, मेरे भाई ने भी डी फार्मा कर्नाटका से किया है। जी जी। स्मॉल टाउन कॉल्ड, अरे क्या बी बी से कुछ नाम है, आई फॉरगॉट, विच इज ऑन दी बॉम्बे बेंगलोर रूट। जी जी। किसी को, हाँ, क्या नाम? बेलगाम। बेलगाम के ऐसा ही कुछ नाम था, मुझे याद नहीं, शायद बेलगाम तो नहीं था। गुलबर्गा, जी गुलबर्गा, जी। गुलबर्गा। ओके, गुलबर्गा, वहाँ शहीद ओके टीपू ओके, हाँ। सुल्तान, हाँ हाँ, शहीद टीपू सुल्तान कॉलेज से किया उसने। और उसका भी जी कंसेप्ट यही था कि वो वहां जाके एडमिशन लेकर आया था, एंड ही यूज्ड टू गो ओनली जी। फॉर एग्जाम फॉर 7-8 days. ओके। जी Okay, सर। and Gulbarga is like Pune, full of colleges. And ओके। पूरा मुस्लिम क्राउड है, 80% आपको मुस्लिम क्राउड मिलेगा, और वो सिटी भी जी पूरा जी। मुस्लिम है। ओके। तो अगर वो लोग आपको स्टार्ट में ठाकुर कॉलेज में स्टडीज तो कराते हैं, जैसे ये क्लासेस हो गए ठाकुर कॉलेज की, बट यू शुड जी जी। आस्क देम कि आप हमको एडमिशन हमारा वहाँ हुआ है गुलबर्गा या जो भी कॉलेज है कर्नाटक की, उसका आप हमको क्या प्रूफ देने वाले हैं? बराबर। और दे आर आस्किंग यू टू गो टू गुलबर्गा एंड गेट द एडमिशन। नहीं, उन्होंने कहा कि सारा एडमिशन प्रोसेस वगैरह यहाँ से ही हो जाएगा आपका। सिर्फ आपको 7 डेज 8 डेज के लिए आपको जो भी उसके जो भी लेटर्स वगैरह जो है वो आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। और 7 to 8 डेज आपको कल एग्जाम के लिए वहाँ स्टे करना है, वो भी हम अरेंज कर सकते हैं। अगर आपको फैमिली के साथ आना, मतलब पेरेंट्स के साथ आना है, तो पेरेंट्स भी आ सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसमें। ठीक है, ओके फाइन भाई। आपको कुछ है। और इसमें आइडिया चाहिए तो मेरे को फोन कर लेना, आप, आई विल एक्सप्लेन यू एवरीथिंग सेपरेटली। जी जी। या कड़ीवाल ना सर? जी 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 जी। या मैं रिजवान बोल रहा हूँ। रिजवान मुसम जी। अरे रिजवान भाई, मनो फोन कर, तो कभी भी मुंह कर दो हाँ भाई। हाँ, this is the beauty हाँ, about this platform, right? कि एक Yes, sir. कनेक्ट Yes, मिलता sir. है हमको, right? अरे सुफियान भाई, सर। रिजवान और हम लोग स्कूल मेट है, मालूम क्या? करेक्ट। बस वही स्कूल मेट्स को, वही प्रोफेशनल्स को एक ही प्लेटफॉर्म पे लाना है ताकि एक दूसरों की हेल्प कर सके। थैंक यू सुफियान भाई, थैंक यू सो मच यार। माशाल्लाह। अच्छा, और एक चीज, या प्लीज गो अहेड। आप Hello, अपना नाम sir. और I अपना am गांव बता Aisha देंगे तो। Charolia from Chedrana. Sir, I would like, my question is that which is the best college for MBBS, and what is the score of that college?
So, means what is the cutoff of that college if I want to get admission in that college? So in Mumbai, the best college is undoubtedly KEM, and all the other four colleges are on par with each other. So KEM ka cutoff last year was 640, no 658 marks, and the rank was around, all India rank was around 2500. So this was last year ka cutoff, and this year ka to jab results आएगा तब पता चलेगा. Okay, sir. Thank you. अच्छा, आई वुड ऑल्सो रिकमेंड कि जो भी बच्चे नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे वो 2022 में देंगे, 2023 में देंगे, या जिन्होंने अपीयर किया है, वो हम लोगों से कांटेक्ट में रहे, ताकि उनके कोई भी क्वेरीज रिजल्ट आने के बाद, इफ दे हैव एनी स्पेसिफिक, इफ दे वांट टू मीट Rayyan, Alkem और अदर मेडिकल professionals, we can connect with them and help them to resolve their queries as much as we can. अच्छा, और एक चीज रैयान और अलकम, जनरली 11th में जब बच्चे साइंस लेते हैं टू परस्यू द करियर इन मेडिकल, करियर इन मेडिसिन, लोगों के अंदर एक कंफ्यूजन रहता है कि नॉर्मल कॉलेज में एडमिशन ले या ये इंटीग्रेटेड ले. आजकल बहुत सारी ये इंस्टीट्यूट है, एलन है, आकाश है, राव है, वगैरह वगैरह, तो इन लोग इंटीग्रेटेड कराते हैं. इनका मेन एम ये है कि आप नीट पे कंसंट्रेट करो, बाकी सारे सब्जेक्ट तो हम लोग ऐसे ही करवा लेंगे, those are secondary, right? So what do you recommend? मेरे हिसाब से अगर इंटीग्रेट मिलता है और अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, सो इट्स वेल एंड गुड, ले लीजिए. बिकॉज 11th-12th में आपको बीच पे जो असाइनमेंट्स एंड सम कॉलेज के एग्जाम्स, ये वो में आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, तो आपकी प्रिपरेशन एकदम थरली होते रहेगी. एंड इफ यू कांट अफोर्ड इंटीग्रेट कॉलेज, बिकॉज मैंने देखा नॉर्मली इंटीग्रेट कॉलेज की फीस थोड़ी 30-40,000 रहती है, तो कोई ऐसा कॉलेज ले लीजिए जो इतना नामचीन नहीं होवे और जिधर अटेंडेंस का या कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होवे. सो आप नॉर्मली ज्यादा कम कॉलेज नहीं जाए तो प्रॉब्लम नहीं हुई. जैसे एक मेरा दोस्त था, वो अफोर्ड नहीं कर पा रहा था, तो उसने बर्फी वाला में 11th-12th के लिए ले लिया था. सो ही यूज्ड टू हार्डली गो, मतलब 1 या 2 दिन जाता था, मतलब खाली प्रैक्टिकल या कुछ, इसलिए बस एग्जाम देनी पड़ती थी उसको टाइम टू टाइम. सो अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो इंटीग्रेट ले लीजिए, बिकॉज कोई इतना फर्क नहीं पड़ता, आपकी प्रिपरेशन ज्यादा अच्छी हो जाएगी. ओके, या प्लीज. सर, आप आकाश के IITS में कितना स्कोर करते हैं थे, लाइक अपने प्रिपरेशन फेज में? तो मैं आकाश में था 11th में. यूजुअली एकेडमिक ईयर जो 2018-19 था, तब तक AITS के पेपर टफ आते थे, तो मेरा स्कोर ऑनेस्टली बताओ तो मेरा 720 में से एवरेज 300 था. इनफैक्ट मेरा 11th के फुल सिलेबस में माय स्कोर वाज 272 आउट ऑफ 720. फिर जब मैं 12th में आया, 12th में AITS के पेपर थोड़े इजी और मोर रेलेवेंट बनते गए व्हेन इट कम्स टू नीट, तो डिफिकल्टी कम हो गई. और फिर 12th में मेरा स्कोर 720 में से एवरेज अराउंड 590 to 600 रहता. लेकिन मेरा यही है कि like don't pay much attention to your score, like just make sure that you are analyzing your paper, and also कि you are paying attention to the mistakes you are making, the type of mistakes you are making, कि silly mistake है, calculation mistake है, conceptual mistake है, and make a separate book for your mistakes. This is one thing I did not do, but I would recommend everyone to do this, कि एक अलग से separate notebook बना लो, अभी तक नहीं बनाई है तो अभी बना लो, जिसमें सब mistakes note down करिए, वो बहुत काम आती है आगे. And don't worry much about your test score. हाँ, ये प्रॉब्लम मैंने भी बहुत प्रिवेलेंट देखा है कि लोग अपने मॉक टेस्ट के मार्क्स से एकदम डिप्रेस्ड हो जाते हैं और फिर उम्मीद छोड़ देते कि वह कुछ नहीं हो सकता, या फिर हम नहीं क्लियर कर पाएंगे. ये एकदम फालतू चीज है. बिकॉज मैंने भी जब शुरू किया था, मेरा फर्स्ट मॉक टेस्ट में 450 मार्क्स थे. मैंने 12th तक कभी 600 स्कोर नहीं किया था मॉक टेस्ट में. लेकिन जब जैसे जैसे सब कोप अप होते जाता है, सिलेबस खत्म होने आता है, फिर तुम फुल सिलेबस टेस्ट देते हो, तो तुम्हारे मार्क्स अपने आप बढ़ जाते हैं. एंड में मॉक टेस्ट में
600 to 650 एवरेज मार्क्स आते थे। सो मॉक टेस्ट दीजिए और उससे नॉलेज लीजिए कि आपको क्या गलती आ रही है और क्या प्रॉब्लम्स फेस हो रहे। बहुत लोगों को टाइम इशू भी होता है, तो पेपर लिखने की भी एक स्ट्रेटेजी बनाइए और उसको फॉलो कीजिए। सो ऐसे आप मॉक टेस्ट का पूरा फायदा उठा पाएंगे। मॉक टेस्ट के मार्क्स इतने मैटर नहीं करते, बस मॉक टेस्ट में जो क्वेश्चन आए वो पूरा मॉक टेस्ट खत्म होने के बाद होना चाहिए कि आपको आता है, फिर मतलब सोल्यूशन देखने के बाद भी फिर ऐसा याद हो जाना चाहिए कि हाँ अब मेरे को ये सवाल आता है। Sir, Yeah, please go ahead. If you can share your name and your village, that would be helpful. sir, I'm Laiba Bhujaria and my village is Ghataman from Gujarat. So actually I have a doubt, आप paper कैसे solve करते थे? Like usually I solve physics first and then chemistry and then biology. Is there any other strategy which we can use? So what I used to do was I used to start with biology, and I used to make sure that I have studied biology to such an extent that I am solving each question in around 30 to 35 seconds, so that I save time for physics and chemistry. And then I used to shift to chemistry, and in chemistry section I used to make sure that I am completing the inorganic part first, because वो again biology जैसा रहता है, और फिर end में मैं physics करता था। तो ये मेरा था, बट मतलब ये जरूरी नहीं है कि तुम भी ये फॉलो करो, तुम्हें जैसा सही लगता है वैसा करो, बट दिस वाज द मेथड दैट आई यूज्ड टू फॉलो, दैट आई फॉलोड थ्रू आउट माय 2 years of preparation. Alkam, your take? एक्चुअली मैं नॉर्मली किसी को मेरी पेपर देने की स्ट्रेटेजी बताता नहीं, बिकॉज इट माइट नॉट सूट एनीवन। बिकॉज मेरे पास जैसे ही पेपर आता था मैं एकदम, क्योंकि मुझे पहले से कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने की आदत थी, मैं एकदम रैंडमली कुछ भी सॉल्व करना शुरू कर देता था। सो बहुत बार तो ऐसा भी हुआ है, नॉर्मली लास्ट के मॉक टेस्ट मैंने 1 से 1.5 घंटे में ही मेरे हो जाते थे। सो माय फादर यूज्ड टू बी आल्सो स्कोल्डिंग मी के इतना फटाफट पेपर खत्म कर देते हो, फिर सिली मिस्टेक हो जाती है, फिर मार्क्स कम आते। सो धीरे धीरे दो, लेकिन वो चीज मैंने इतना अक्वायर कर लिया था ना, तो मैं तो एकदम रैंडमली पेपर सॉल्व करता था। नीट का ऑफिशियल पेपर भी मेरा 1 घंटे में ही खत्म हो गया था और आधे घंटे में OMR मार्क किया था। सो मेरी स्ट्रेटेजी फालतू है, तो आप उसको मत फॉलो कीजिए। And I think it's a good advice hidden in your message, Alkam. So basically, I would recommend like our students from 6th, 7th, 8th, or whatever, or in school, to appear for this Olympiads and those competitive exams, so that you lose that exam fear. You get acquainted with this MCQ type of questions. You get acquainted to answer questions within the stipulated times and so on. So probably by the time you appear or you come to your 11th and 12th grade, you can be developing that supernatural power that Alkam had developed, right? या सुफियान, इस चीज से मैं बहुत एग्री करता हूँ। आप अगर ओलंपियाड आपकी स्कूल दिलवा रही है, सो मैं 100% एग्री करूंगा। आप कोई भी ओलंपियाड में बस पैसा भर दो और दे दो, तुम्हें आता है नहीं आता है वो देखा जाएगा, बस दे दो। मैंने इतने सारे ओलंपियाड दिए कि मुझे भी याद नहीं, किसी में मेरे को 0 भी आया, किसी में नेगेटिव आया है, किसी में मेडल भी मिला है। तो एग्जाम देना इज ऑलवेज बेटर। उसमें आता है नहीं आता है वो बाद में देख लेंगे। माय फादर यूज्ड टू ऑलवेज से, जस्ट गिव एग्जाम, डोंट फियर व्हाट विल कम व्हाट विल नॉट। एग्जाम दे दो। I think this is a very, very good tip. And these exams are very, very cheap. I think it's 75 rupees or 150 rupees per exam. So I would highly recommend like people should at least give the science and maths Olympiad for the what do you call NEET aspirants or the engineering aspirants. And whatever strategy that Rayyan mentioned, starting with bio and then chemistry and physics, has been recommended by almost all the counselors or institute that I know of. Okay, Yes, in terms of, yeah, go ahead, Welcome. I feel that Rayyan's strategy is the standard strategy followed by everyone, because अगर आप बायो पहले कर लेते हो ना, तो जो आता है और वही सॉल्व कर लेते हो, तो आपको अच्छा कॉन्फिडेंस आ जाता है। सो आप फिर अपना पेपर दे देते हो। नॉर्मली मैंने देखा है लोग फिजिक्स से शुरू करते, पहले 2 क्वेश्चन नहीं आए तो उसको लेके ही बैठ जाते और फिर आधा टाइम वेस्ट कर देते। सो आई फील के पहले बायो सॉल्व करना बहुत अच्छा है, फिर केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स। सो आप धीरे धीरे हार्ड पे आओगे तो आप है ना अक्वायर हो जाओगे, पेपर पे कॉन्सेंट्रेटेड रहोगे और अच्छे से पेपर दे पाओगे।
Yeah, it's always better to pick up the low hanging fruits and then go with the higher ones, right? So Yeah. अच्छा, और एक चीज जैसे आपने बताया कि इंटीग्रेटेड अगर करना है, अगर आपको फीस की कोई दिक्कत नहीं है, राइट? मैंने ये भी देखा है आजकल बहुत सारे एसएमएस और व्हाट्सएप मैसेजेस फ्लोट होते हैं जिसमें दिस बिग जायंट्स लाइक बायजूस एंड आकाश एंड एलन, they do some kind of competitive all India test in this last quarter of the previous year. So for example, October, November, December timeframe, they'll conduct an exam, and the kind of percentage that you get in those exams, you get those discounts. So for example, if I get 70%, I get 70% discount on the fees. If I get 80, I get 80% discount. So can you throw some light on that? या इस पे मैं बोलना चाहूंगा, अगर एक्चुअली वो आपको बोलेगा 70 to 80% स्कॉलरशिप, बट द प्रॉब्लम इज देन दे इंक्रीज द फीस. मेरे दोस्त को 80% स्कॉलरशिप मिली थी, तो वो एडमिशन कराने गया, सो ही वाज टेकिंग बेस फीस एज 7 लाख रुपीस फॉर 2 years. So he got 80% discount, but 20% of 7 lakh is also not a small amount ना. So ये एक स्कैम चलता है कि वो आपको बोलेगा 70% स्कॉलरशिप, 80% स्कॉलरशिप, लेकिन आप उधर जाओगे तो आपको पता चलेगा कि नो, यू हैव टू पे सम ऑफ मनी. But do you think like that is, do you think that is what you call cheaper compared to the full money that they might ask you? Maybe not 7 lakh, but 5 lakhs. हाँ, if they are giving you 80 to 100% scholarship, you should definitely try because it's good. पूरी फीस पे करने से तो अच्छा थोड़ी करना चाहिए. So अगर आपको 1,50,000 से 2,50,000 भी 2 साल का पे करना पड़े, so that's a standard money that people pay. So कुछ ज्यादा तो नहीं मांग रहे, तो you can go for it. Okay, Jazakallah. और किसी को कुछ पूछना है? हेलो सर. हेलो हाँ, प्लीज सर, एनी गुड कॉलेज फॉर बी फार्म? बी फार्मा में जैसा बैचलर फार्म. बताया कि मुंबई में दो कॉलेज है. एक तो उधर है ओशिवारा में KHMW कॉलेज के सामने, और दूसरा आइडिया है. ओके सर, थैंक यू. Audience, this is the right time for asking questions. I mean, like, see, these are our movement brothers, so don't hesitate, don't feel shy to ask anything. I mean, like, whatever question you have, be it stupid, that's fine. I mean, like, it's better to ask stupid questions here than being stupid in yourself, right? सुफियान भाई, और मुझे लगता है कि बहुत से लोग इसलिए शर्माते होंगे कि हम इंग्लिश में बात कर रहे हैं. नहीं, कोई बात नहीं. देखो, अगर इंग्लिश गुजराती जो भी, हाँ, अगर जेने गुजराती समझ में आवे तो આપણે ગુજરાતીમાં બી જવાબ હા, આપવા ગુજરાતીમાં પૂછો, કોઈ વાંધો નથી. બેઓને ગુજરાતી આવડે છે. હા, બિલકુલ. આપણા મુંબઈ ભાષામાં વાત કરો તો પણ ચાલશે. हिंदी में ही रखते हैं. नहीं, और रैयान की गुजराती थोड़ी वर्नाकुलर मीडियम जैसी रहेगी, पर ठीक है, चलेगा. मेरी भी गुजराती में थोड़ी प्रॉब्लम, लेकिन समझ में आ जाएगी सामने वाले बंदे को, अगर वो पूछना चाहता है तो. हाँ, कोई बात नहीं. देखो, बात करें, कोई बात नहीं. कभी कभी हमें ऐसा लगता है, यार मैं ऐसे सवाल पूछ लूंगा, लोग क्या सोचेंगे. अरे कोई सवाल स्टूपिड नहीं होता है, आप बस पूछ लो. हाँ जी जी. और ये लोग अपने फर्स्ट ईयर में हैं, दे हैव हेक्टिक शेड्यूल, और इनके क्या बोलते हैं, इन्होंने ये सेशन के लिए अपना कीमती वक्त भी दिया है, और इस सेशन को प्रिपेयर करने के लिए अपने बहुत सारे अपॉइंटमेंट को इधर उधर किया है. तो ये हमारे लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि हम इसका फायदा उठाएं और इनको अभी पूछे, ना कि उनको बाद में अलग से कॉल करें. क्योंकि देखो, ये लोग भी अपने स्केड्यूल में बहुत ज्यादा बिजी है. मेडिकल की पढ़ाई इतनी इजी नहीं है, बहुत ही हेक्टिक स्केड्यूल. तो क्यों ना हम लोग ये फोरम में ही पूछ लिया जाए, ताकि आपके सवाल दूसरे दो लोगों के सवाल का आंसर बन सकते हैं. और जो लोग को भी कुछ प्रॉब्लम है इधर सवाल पूछने का, तो वो कांटेक्ट शेयर कर दिया मैंने चैट बॉक्स में, तो मैसेज भी कर सकता है, मैं रिप्लाई कर दूंगा इन केस इधर नहीं पूछ सकता कोई भी रीजन से. थैंक यू रैयान और भाई. हाँ, एक करेक्शन था जो रैयान भाई ने बोला था EWS कैटेगरी का. सो अगर आपकी फैमिली इनकम एनुअली 8 लाख या उससे कम है, सो आपको EWS कैटेगरी का सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, आपको खाली फीस में 50% कंसेशन मिलेगा.
अगर आपको ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से एडमिशन लेना है तो उसका एक सर्टिफिकेट बनता है और उसमें और 2-4 क्राइटेरिया है जो अगर आप वो फुलफिल करते हो तो ही आपको ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का सर्टिफिकेट मिलेगा. सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन गेटिंग कंसेशन इन फीस और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी. सो इसको ध्यान में रखिएगा. जज़ाकल्लाह. सो और एक चीज मैंने ये देखा है कि हम मोमनो में एक जैसे एक हम लोग ने एक परसेप्शन बना के रखा हुआ है कि यार मेडिकल मतलब ये तो तोपचंद लोग ही कर सकते हैं, ये तो बोलते हैं ना होशियार लोग या फिर जो पैसे वाले लोग हैं वही लोग कर सकते हैं, राइट. तो अगर कोई बच्चा एवरेज है 60-70% है स्कूल में, राइट, क्या वो मेडिकल के लिए एस्पायर कर सकता है? और अगर कर सकता है तो फिर कैसे हम लोग माँ बाप को किस तरीके से मोटिवेट करना चाहिए और किस तरीके से उनको अप्रोच करना चाहिए? अगर इसका जवाब अगर मेरे से पूछे तो अगर 60-70% की जहाँ तक बात है तो मैं स्कूल में उतना ही लाता था और नॉर्मली स्कूल के मार्क्स कुछ मैटर भी नहीं करते. मैंने आईसीएससी के 98 और 100% वाले लोग के साथ भी क्लास में बैठा हूँ. 11th-12th में वो लोग को कभी कुछ नहीं आता है तो कभी हमें कुछ नहीं आता है. ऐसा कुछ नहीं कि हम इंफीरियर है या हमारे परसेंटेज कम है तो हम नहीं कर सकते. इट जस्ट नीड्स दैट अगर आप रोज पढ़ने को राजी हो और रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ने को राजी हो तो आप ये चीज क्लियर कर सकते हो. बिकॉज एक टाइम पे जेई एडवांस को कोई डिफिकल्ट बोल सकते हैं क्लियर करने के लिए, लेकिन नीट जैसी एग्जाम बहुत सिंपल है क्योंकि इसका फिजिक्स भी इतना हार्ड नहीं है कि किसी को प्रॉब्लम होगी. और पिछले 2 साल से तो जो ट्रेंड चल रहा है तो फिजिक्स भी थोड़ा इजी आने लगा है कंपेरेटिवली. अगर आप 2016 का नीट का पेपर देखो और 2019 या 20 या 21 का पेपर देखो तो आपको दिखेगा कि उन लोग ने पेपर बहुत सिंपल कर दिया. बिकॉज बहुत रूरल साइड के बच्चे भी ये पेपर देते तो सब नहीं कर पाते क्लियर. सो इसके लिए एग्जाम क्लियर करना कोई बड़ी बात नहीं है, आप आराम से कर सकते हो. बस डिटर्मिनेशन होनी चाहिए कि हाँ भाई करना है क्लियर. अच्छा. और एक सेकंड ना प्लीज. और ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होती है ना, चाहे ओलंपियाड हो, नीट हो ना, इट्स अ स्किल दैट यू हैव टू एक्वायर, राइट. इसमें एक ट्रिक ये है कि यू डोंट नीड टू फाइंड द आंसर, यू नीड टू सेलेक्ट द आंसर. एंड देयर इज डिफरेंस बिटवीन फाइंड द आंसर एंड सेलेक्ट द आंसर, राइट. तो फाइंड में तुम बहुत टाइम गवा दोगे, लाइक एक आंसर ढूंढने में 5 मिनट लगा दोगे, बट सेलेक्ट करने में यू जस्ट नलिफाई द रॉन्ग वंस, ऑड वंस, एंड देन कम अप. दैट वुड बी मच क्विकर. सो this comes with more practice. Just an input. Sorry, someone was saying something. So, like, I wanted to ask, is there a different time required to give HSC portion, like for boards? अगर आप मेरे से पूछे तो मैं नीट के लिए थरली पढ़ रहा था. मैंने 11th में और 12th के एंड तक कोई भी कॉलेज का एग्जाम नहीं दिया था, एक भी नहीं. मेरा रिजल्ट भी आ गया था, मैंने कोई एग्जाम नहीं दिया था. और दिसंबर एंड जनवरी 2020 शुरू हुआ. जनवरी के 15-20 तारीख को हमें सब जर्नल ये वो देना था. तो हम लोग ने जनवरी से लेके बोर्ड्स एग्जाम जब तक खत्म हुए तब तक बोर्ड्स को टाइम दे दिया और हम आराम से पास भी हो गए. देयर वाज नथिंग लाइक रॉकेट साइंस. बस जो 11th-12th में पढ़ा था उसको बस अभी आंसर में लिखना था. सो इजीली पास हो गए. तो आपको अलग से बोर्ड्स को टाइम देने की जरूरत नहीं है, मुझे तो लगता है ऐसा. Alkam, if may I ask, आप अपना स्कोर बता सकते हो एसएससी एचएससी का? आई मीन लाइक यू कैन स्किप इट इफ यू डोंट वांट टू. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. अगर आप पीसीबी में पूछे तो पीसीबी में मेरे तीनों में 80+ आए थे 100 में से. माशाल्लाह और माशाल्लाह. इंग्लिश में 75 थे 100 में से. और साइकोलॉजी में एक्चुअली मेरा थोड़ा झगड़ा हो गया था टीचर से तो उसमें 55 आए थे. सो मेरे ओवरऑल परसेंटेज 77% थे. तो मतलब टिप ये है कि पढ़ाई के साथ टीचर से झगड़ा भी नहीं करना चाहिए, राइट? हाँ, बोर्ड्स में तो खास करके नहीं करना चाहिए. मेरा भी सेम ओपिनियन है कि there's no आपने भी टीचर से झगड़ा किया था? नहीं, there's no क्या बोलते हैं, कोई जरूरत नहीं है कि बोर्ड्स के लिए अलग से टाइम दो. मैंने भी यही किया था. इनफैक्ट मैं तो प्रीलिम्स में आईटी में फेल भी हो गया था. तो माशाल्लाह माशाल्लाह. मैंने प्रीलिम्स दिया नहीं था. बोर्ड्स को इतना सीरियस लेने की जरूरत नहीं है. बी कंटेंट विद व्हाटएवर यू आर गेटिंग. मेरे को बोर्ड्स में 83 आए थे तो वो हो जाता है. बोर्ड्स का इतना अलग से कुछ टेंशन लेने की जरूरत.
और बहुत लोग सोचते हैं कि ये एडमिशन में हेल्प करेगा बोर्ड्स के परसेंटेज। मैं उनको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैं मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए गया, उसने मेरी 10th का पासिंग सर्टिफिकेट लिया, 12th की मार्कशीट लिया, दोनों पे मेरा नाम और डेट ऑफ बर्थ देखा और साइड में कर दिया। सो कोई मार्क्स देखता नहीं है बोर्ड्स के, बस आपको पीसीबी में 150 प्लस लाना पड़ेगा तो आप एलिजिबल हो जाओगे नीट के मार्क्स के साथ एडमिशन के लिए। सो खाली पीसीबी में ध्यान देना चाहिए इंसान को। और ज्यादातर फिजिक्स में बच्चों को इनफैक्ट 11th पे ध्यान देना चाहिए, बिकॉज हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत बड़ा गैप है बिटवीन 10th एंड 11th। दो या ना दो, राइट? देयर इज अ वास्ट डिफरेंस। ये पूरे कंसेप्ट ही चेंज हो जाते हैं। पहली बार बच्चा इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव और वगैरह वैसी सारी नई चीजें सीखता है, तो वो बहुत बड़ा गैप है। तो उस गैप को थोड़ा मतलब अच्छे ट्यूटर के साथ बैठ के या अच्छा मेंटोर के साथ बैठ के उसको कम करना चाहिए। प्रॉब्लम गैप में नहीं है, प्रॉब्लम गैप में नहीं है, प्रॉब्लम एग्जाम देने में। 10th तक क्या होता है, हम कोई भी बुक लेते, उसको पढ़ते, याद होता है, समझ में आता है, ठीक है, रट्टा मार लिए, वो भी ठीक है। एग्जाम में गए, जो याद था सब लिख के आ गए। सो 10th तक हमारा पढ़ने का पैटर्न अलग रहता है। हम 11th में आते तो हमें पता चलता है पढ़ाई तो करनी है लेकिन साथ में दिमाग भी चलाना पड़ेगा। खाली आप दिमाग में कंसेप्ट लेके घूमोगे और क्वेश्चन सॉल्विंग एबिलिटी नहीं रहेगी, सो हमारा कोई मतलब नहीं है फिर ये एग्जाम देके। सो देयर इज नॉट अ डिफरेंस इन द सिलेबस थिंग। प्रॉब्लम यह है कि एग्जाम का पैटर्न चेंज हो जाता है जिससे हम अक्वायर्ड नहीं रहते। तो वो पैटर्न से अगर आपको अक्वायर होना है तो आपको स्कूल लेवल पे ओलंपियाड ये सब देना चाहिए। तो आपको पता चलेगा कि कैसे कैसे चीज होती है आगे जाके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। Alka, somebody was asking whether they can give the exam, NEET exam in other languages or only in English. नहीं, अदर लैंग्वेजेस का भी ऑप्शन है। इंग्लिश है, गुजराती है, हिंदी है और भी बहुत है, जैसे बंगाली भी था, साउथ की भी लैंग्वेजेस थी। आई डोंट नो अबाउट उर्दू लैंग्वेज, बट इंग्लिश, हिंदी और गुजराती में तो। Can you see my screen, Alka? No, not able to see. Yeah, I'm able to see it. Okay, there is a Urdu also, Alka. Urdu paper. Oh, अच्छा अच्छा. Okay, actually I didn't have any idea. From 20, yeah. So I think somebody was asking, can they give exam, NEET exam other than English language? जी दे सकते बिल्कुल। बस आपको मीडियम ऑफ लैंग्वेज में फॉर्म भरते वो डाल दोगे तो हो जाएगा। लेकिन मैं प्रेफर करूंगा कि आप हो सके तो इंग्लिश में दीजिए, बिकॉज क्या होता है वो लोग इंग्लिश में पूरा पेपर बनाते और फिर उसको अलग लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके आपके लिए छापेंगे। सो शायद 1 या 2 साल पहले प्रॉब्लम हुआ था, कुछ इंग्लिश टू साउथ की कोई लैंग्वेज थी, उसमें ट्रांसलेट गलत हुआ था, तो वो क्वेश्चन बच्चों ने गलत समझा और गलत आंसर दिया। सो उनको उसका कुछ बोनस मार्क नहीं मिला, वो केस सुप्रीम कोर्ट तक गया लेकिन कुछ हुआ ही नहीं उसका। सो मैं प्रेफर करूंगा कि आप इंग्लिश में दीजिए, बिकॉज बाद में एमबीबीएस तो पूरा इंग्लिश में ही आने वाला है। सो 11th-12th में आप थोड़ा इंग्लिश का बेस बना लेंगे तो अच्छा रहेगा। Yes, you're right. Exactly. And there is one more trend, Alkam and Rayyan. Those who are getting less mark, let's say in NEET or maybe in other board exams, whatever, but NEET is more important. So what they do is they don't get admission in MBBS. Of course, they go in homeopathic. They do homeopathic, the BHMS, and then afterward, after doing homeopathic, they practice in homeopathic, and slowly they switch on to specialization in MBBS, for example, cardiologist or cancer treatment or any other nephrology or something like that. So what is your opinion? I mean, is it this also is a way to go? एक्चुअली आपकी बात थोड़ी सही है, थोड़ी गलत है। दे डोंट डू समथिंग स्पेशलिटी। वो एक ऑल्टरनेट मेडिसिन करके डिप्लोमा का कोर्स आता है, दे डू दैट। वो कुछ 6 महीने का कोर्स आता है, आप उसकी एग्जाम देके पास हो जाओ तो आपको सर्टिफिकेट दे देते हैं। सो वो अपने डिग्री में MD लिखेंगे, बाजू में ब्रैकेट में AM लिखेंगे। सो नॉर्मली व्हाट पीपल थिंक दैट दीज आर MD डॉक्टर्स, बट द प्रॉब्लम इज उसका फुल फॉर्म डिप्लोमा इन मेडिसिन है और ब्रैकेट में AM का मतलब ऑल्टरनेट मेडिसिन होता है। सो दे जस्ट डू अ ब्रिज कोर्स जस्ट टू प्रिस्क्राइब सम एलोपैथिक मेडिसिन। एंड नोट वन पॉइंट कि वो सारी मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते, एक लिस्ट है उसमें से ही वो लोग प्रिस्क्राइब कर पाते। So please don't think that they both are equal, otherwise you will regret by taking that.
Yeah, many of them, they don't know actually, and they go for this option thinking that they might switch on to to so-called MBBS, MBBS degree. But yeah, you are right, exactly. And So I think our students also should know this very well. वही, और एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, अभी पिछले साल आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को सर्जरी की परमिशन दे दिए, सो आयुर्वेदिक की तरफ ट्रेंड बढ़ गया। सो लाइक वाइज जैसे यूनानी में उर्दू का प्रॉब्लम आता है, सेम आयुर्वेदिक में आपको संस्कृत का भी प्रॉब्लम आ सकता है। सो प्लीज टेक नोट दैट, बिकॉज फर्स्ट ईयर में उन लोग को संस्कृत के श्लोकास रहते हैं, जहां तक मुझे पता है। Yeah, you are right. So that's And correct. what about homeopathic? Still the homeopathic, because last time what I saw in the newspaper, they had still the homeopathic council and NM council, MBBS council, they had some problems. So I'm not sure whether still it exists or they have solved it, the bridging problem. Yep. अलकम और एक सवाल और रैयान और एक सवाल ऑडियंस में से आया है कि अगर किसी को कालसेकर कॉलेज में एडमिशन लेना है तो कितने मार्क्स कुछ टेंटेटिवली पता है, कितने नीट स्कोर चाहिए और टेंटेटिव फीस क्या है? मेरे गांव की एक लड़की ने आज से शायद तकरीबन 3 साल पहले लिया था एडमिशन। वो टाइम पे 350 मार्क्स में हो गया था एडमिशन, बट आई डोंट नो द कट ऑफ। वो मार्क्स में उनको एडमिशन मिल गया था, पर पता नहीं क्या कट ऑफ जाता है। बट जहां तक यूनानी की बात है, यू कैन टेक 350 to 400 एज अ गुड थिंग। उससे कम ही जाएगा नॉर्मली, बट अगर आप 350 to 400 में, तो आप एक सेफ जोन में क्या आपको एडमिशन मिल जाएगा। हाउ अबाउट द फीस टेंटेटिवली? Fees tentatively, I feel it might be from 50,000 to 1,50,000. Okay. अर्शद भाई, आप अपने स्क्रीन को प्लीज बंद कर दीजिए। ये सारे केमिकल बॉन्ड्स देख के थोड़ा मतलब धक 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 बढ़ रही है। Okay, no problem. Just kidding. All right. We still have 5 more minutes. अगर किसी को सवाल पूछना है तो जल्द से जल्द पूछ लीजिए, ये मौका है before we lose contact with such gems from our movement community. अच्छा, और एक चीज, जैसे मैंने कहा, अगर कोई नीट के एस्पिरेंट्स है या जिन्होंने नीट दे चुके हैं, प्लीज शेयर देयर नेम्स विद अस so that we can add you to the WhatsApp group where we have Rayyan, Alkam and many other doctors. We also have 3 doctors from Gathaman जिन्होंने रमजान के वक्त क्लियर किया था। माशाल्लाह, इसके अलावा काफी बड़ा पैनल है। तो आपके अगर कोई स्पेसिफिक क्वेरीज है या इफ यू नीड help and guidance throughout your medical career, these guys will be able to assist you, help you. So share your details and we will be happy to add you in those groups. Hello. Yeah, please. अगर आप अपना नाम गाँव बता के क्वेरी सवाल पूछेंगे तो अच्छा रहेगा। Yeah, my name is Ahmed. I'm from Firozpura. I just want to know that what is the career path to be a surgeon? Okay, so surgeon mein first you have to do MBBS and then you have to give NEET PG, which is the entrance exam to get into postgraduate courses, which is going to be changed into next now. But basically एक postgraduate exam रहती है, वो clear करके then you have to take up MS General Surgery, या फिर जो भी MS Orthopedics है, MS ENT है, फिर ये है। This is the path you need to take. और अगर आपको कार्डियोलॉजिस्ट या ऑन्कोलॉजिस्ट मतलब कैंसर का सर्जन बनना है, तो आपको स्पेशलिटी के बाद सुपर स्पेशलिटी मतलब सुपर स्पेशलिटी कोर्स करना पड़ेगा। उसके लिए नीट सुपर स्पेशलिटी की एग्जाम आती है, तो वो क्लियर करके आप फिर MCH करना पड़ेगा। So nowadays so we have 3 levels of NEET. और अभी तो एक और वो हो गया है, लोग MD डर्मेटोलॉजी स्किन का डॉक्टर बनते, फिर नीट सुपर स्पेशलिटी में MCH प्लास्टिक सर्जन का डिग्री करते, बिकॉज दैट इज वेरी बूमिंग सेक्टर नाउ। सो नाउअडेज दैट इज आल्सो वेरी गुड ट्रेंड। नॉर्मली लोग MS जनरल सर्जरी करके कार्डियोलॉजिस्ट या ऑन्कोलॉजिस्ट बनते। Thank you so much. So NEET undergraduate is for MBBS, NEET PG is for MD, and maybe NEET super specialty for specialization.
And one more point, there is no reservation in NEET super specialty. Oh, ouch. बस वही एक एग्जाम है उसमें, और एक और कोई 2 एग्जाम है इंडिया में जिसमें रिजर्वेशन नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, मुझे एक वालेकुम क्वेश्चन सलाम। पूछना है। सलमान भाई, मैं अगर आप जी हाँ, आप मैं अपना नाम आपका जी गांव है, बताओगे तो हमारे। मेरा नाम सलमान है, मैं रैयान का अंकल हूँ, फिरोजपुरा से। रैयान का चाचा हूँ। माशाल्लाह। मुझे एक क्वेश्चन पूछना है कि जिन बच्चों को नीट नहीं देना है मगर उनको मेडिकल फील्ड में जाना है, बिकॉज नीट इज नॉट दैट मच इजी, लाइक मतलब इतना इजी नहीं है उसको क्रैक करना, बट जिनको मेडिकल फील्ड में जाना है तो ऐसी कौन सी फील्ड है, जैसा कि इंजीनियरिंग में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, ऑटोमोबाइल है, कंप्यूटर्स है, केमिकल है, मैकेनिकल है, सिविल है, और सर नीट करने के बाद इंजीनियरिंग में भी अगर आप जेई नहीं दो तो आपको सीईटी तो देना ही पड़ता है ना। बोर्ड्स के मार्क्स से तो आपको नॉर्मली कोई प्रोफेशनल कोर्स में एडमिशन मिलेगा ही नहीं। सो नहीं, नीट वो इज, आई अंडरस्टैंड सीईटी देना पड़ता है, बट इंजीनियरिंग में बहुत सारे ऑप्शन है, जैसा नीट के अंदर सिर्फ एक ही ऑप्शन है एमबीबीएस, तो और कोई ऑप्शन है कि बिना नीट के भी अगर किसको मेडिकल फील्ड में जाना है तो जा सकते हैं? तो है बहुत सारे ऑप्शन है ऐसे। आप अगर क्लिनिकल नहीं तो पैरा क्लिनिकल कोर्सेज भी ले सकते हैं, जिसमें बहुत सारे कोर्स आते हैं लाइक। बट वो डिमांडेबल है, लाइक मार्केट में उनका कुछ डिमांड, या तो फिर मेडिकल सेक्टर है सर, डिमांड तो बढ़ेगा ही, पॉपुलेशन बढ़ेगा तो। सो डिपेंड्स कि आप कौन सा ले रहे हो। जैसे लैब टेक्नीशियन का भी कोर्स आता है जो सोनोग्राफी और एक्सरे करते, और जैसे जो पैथोलॉजी में ब्लड हैंडल करते, जो प्रोफेशनल नहीं रहते लेकिन वो ब्लड हैंडल करते, उसका भी कोर्स आता है। सो कोर्स बहुत सारे, और जहाँ तक देखा जाए तो जॉब्स भी मिलना आसान ही है, लेकिन फिर पे में आपको शायद प्रॉब्लम आ सकती है कि आपको पे उतना नहीं मिलेगा जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। ओके, मतलब एमबीबीएस इज द टॉप पे के लिए। हाँ, एमबीबीएस इज टॉप, देन कम्स द आयुष कोर्सेज, देन कम्स द पैरा क्लिनिकल जिसमें नर्सिंग, फिजियोथेरेपी वो सब आते, और फिर उसके बाद ये सब डाइटिशियन का भी कोर्स है, और ये लैब टेक्नीशियन वो सब कोर्स आते। ओके, बिकॉज मेरी जस्ट आई मीन फ्यू वीक्स पहले मेरे फ्रेंड इंग्लैंड में है, उनसे बात हुई थी, उनकी लड़की ने कुछ बीएससी किया है इन कार्डियोलॉजिस्ट के अंदर। बीएससी मतलब वो कोई कार्डियोलॉजिस्ट का कुछ कोर्स किया है उन्होंने, टेक्नीशियन, कार्डियोलॉजी टेक्नीशियन रहता है। ओ टेक्नीशियन, या तो लाइक ही इज गेटिंग अ पे ऑफ अराउंड 30,000 pounds। 30,000 pounds yearly, yeah. No, in foreign countries, usually the salary is high for medical, even the nurses, their salary is high. या उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि इंग्लैंड में नर्सों की बहुत मतलब इतनी वहाँ पर जरूरत है अभी कि अगर कोई नर्स करके भी आ सकता है तो वहाँ बहुत अच्छा पे पैकेज है इंग्लैंड के अंदर। सलमान भाई मैंने अपनी मैं कनाडा में भी था सलमान भाई, तो in foreign countries most of them, whether they are even doing a paramedical or emergency courses, those who go in ambulance and even light courses, their pay is usually high. High means not higher than any professional courses, but very, very good. I mean, good pay. बट सर एक और प्रॉब्लम है, अगर सैलरी हाई तो उधर एक्सपेंसेस भी उतने हाई रहते हुए क्या yes, तो exactly. इट नलिफाइज बोथ। 30,000 थोड़ा ओवर नंबर है, इतना तो मुश्किल लग रहा है, बट अगर मिलता है expenses high है ना, foreign country में expenses high. Actually, she's a Britisher over there. I mean, she's a citizen over there. वो खुद सिटीजन, उनकी पूरी फैमिली सिटीजन है, so that's why citizen foreign countries preference salaries are according to their life, according to their each country they have their minimum wages. Like in Canada, the minimum wages is $15 per hour. In Australia is $16 per hour, something like that. So depends your lifestyle and also the expenses basically. या बिकॉज मेरे एक दोस्त के अंकल है, वो फिजियोथेरेपिस्ट है अमेरिका में, सो वो भी $40,000 पर एनम कमाते तो है, लेकिन एक्सपेंसेस भी उतने, सो इट नलिफाइज बोथ। if it is per annum, it's very very less. I thought someone was saying per month. No, per annum. Oh, per annum तो बहुत कम है, per annum बहुत कम है। And taxes also are high, Sufyan bhai.
नहीं, I was under the impression that or maybe I overheard per month, so that's fine. All right, और audience में किसी के पास और कोई question है? फिजियोथेरेपी के लिए नीट की जरूरत है या नहीं? There's a question from audience. है बट उसका कट ऑफ भी बहुत कम जाता है, सो आप अगर थोड़ा अच्छे से भी प्रिपेयर कर लोगे ठीक ठाक तो भी आपको आराम से मिल जाएगा. Okay. Hello, I sir. think yeah, please go ahead. Sir, you just asked that you will add the in group for NEET aspirants. So when? May I know who's speaking? I'm Asya Nidaria from Badani. Okay, Asya, let's hold this question. We'll get back to you. Okay, sir, no problem. Yeah, thanks. All right. Looks like we are not seeing any questions from the audience, so I think we are good. Any last question that anyone has before we wrap this call? All right. Thank you, Rayyan and Alkam, for your precious Sunday morning and enlightening us with this valuable session. I think this was one of the best Sunday I have spent in the last few weeks. Jazakallah. May Allah give you jazaak khair.